actually happy, sir. I'm more than happy. I'm relieved that I've been able to do something that has made my parents proud. You took part in Abhyas prelims also, right? What is the importance of this stimulation based examination? It has played a very important role in my preparation. पहला तो कि आपको गर्मी में बैठाता है, दूसरी बात आपको सी सेट दोपहर में सॉल्व करना है, तीसरी बात सेंटर बहुत दूर मिलता है, ठीक है. सो यू आर एक्चुअली सिमुलेटिंग एवरीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग ऑन दैट डे. अभ्यास इज इंपॉर्टेंट बिकॉज पहले तो आपको क्वेश्चंस की क्वालिटी अच्छी है, सो यू प्रिपेयर फॉर देम. सी सेट आपका प्रिपेयर हो रहा है, साथ ही साथ यू गेट अ होल्ड ऑफ वेयर यू स्टैंड इन द कंट्री. इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू मेडिटेट, इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू स्टे पॉजिटिव, टू हैव गुड पीपल अराउंड यू. एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखना, दैट इज एक्चुअली बेनिफिशियल रादर देन गोइंग फॉर द डिस्ट्रैक्ट. टेक वन डे एट अ टाइम, चाहे अच्छा जा रहा हो चाहे बुरा जा रहा हो, एवरी डे इज अ न्यू फ्रेश स्टार्ट. 1000 पेज पढ़ के मई में एक एग्जाम नहीं लिख सकते. आप उतना पढ़ो जितना आप रिवाइज कर सको. Very big round of applause for Vishwajit, AIS 67. So Vishwajit, we will talk about your journey, your insights about the journey, and what these people can do, right? So before we actually start, I want to know the moment when you were searching your name in PDF. How did it felt? My heart was racing, sir. And back of the mind, I was prepared ki not gonna happen. Not gonna happen. I just have to go back, do the test series that I thought I'll do, and I was mentally prepared ki okay, it's not there. It will not be there. Why? यकीन नहीं होता हमें. यकीन वाली बात नहीं है सर. It's better to prepare for the worst. बस जैसे आप बता रहे थे, आपने अभ्यास के लिए रजिस्ट्रेशन करने का भी सोच लिया. हाँ, yes sir. अभी 2 days back I saw a notification of Abhyas and my first physical stimulus was to register for it. फिर I realized कि अच्छा ठीक है, मतलब दे सकते हैं, वैसे मज़े के लिए दे देंगे. फिर then I told my friend about it, like I'll slap you. वापस आ जा भाई, हो गया अभी. And by the way, really sorry आप लोगों को wait करना पड़ा. I'm sorry. थोड़ा सा अभी भूख लग गई थी सर. अरे नहीं. I've been out since 7 in the morning. No, it's all right. So your first reaction was कि इसमें नहीं होगा. It was there in the back of the mind. कि अगर नहीं भी हुआ तो हाँ, you are ready. I was like हाँ ठीक है, अभी पढ़ना तो है ही वैसे भी वापस जाकर. तो फिर जब पता चला कि 67 रैंक पे है. Yeah, so I was there with my mother. हम लोग बैठे हुए थे and I saw the name. पहले तो था कि लिस्ट में नाम आ गया, चलो satisfied. फिर रैंक देखा, like अच्छी आ गई. But वो believe नहीं हुआ. So I showed my mother कि this is my name in the list. And with a poker face obviously. तो she said like क्या हुआ, अच्छे नंबर नहीं आए क्या? Like नहीं मम्मी हो जाएगा. Then we got happy. Told my father. He was not at home. I called him. Emotional moments. And उसके बाद से सर सिलसिला अभी रुका नहीं है. उनके फ़ोन तो अभी भी बजे जा रहे हैं. And I'm actually happy, sir. I'm more than happy. I'm relieved that I've been able to do something that has made my parents proud. That is something, that feeling is the most important feeling, right? And how did they react? Like your father and your mother and your family. Sir, somehow their reaction was very expected because they always showed confidence in me more than I showed in myself, if I were to be honest. My father always supported me. He said, even when I was not able to succeed in previous attempts, he was like, no problem, you give it. We are there to support you. I thought about taking up a job. I told him कि I'll do this. I'm getting this opportunity. Like क्या ज़रूरत है? You do ना. You do what you are doing. You do it wholeheartedly. नहीं होगा then we'll see. So he's been like a solid rock, sir, behind my back. So and that is also very important. You know, UPSC journey, it becomes a long journey, and the whole family goes through it. Definitely, sir. Definitely. A lot of extended family members don't even recognize me now. They were like, इसको तो बहुत छोटे में देखा था. Now, coming back to your journey, where like you are from MP, you did your graduation in DU, right?
And so when did you actually thought कि okay I will go for civil service? Yes, sir. This was June 2019, I remember, because the whole month I spent thinking about this only. I was at a crossroads, either do this or this. And finally I talked to my parents. एक pragmatic approach थी कि भाई इतना resources है, we can invest in only one of these. So I talked to my professors, and I especially thank my professors for nudging me in this direction, and my seniors also. They said that you have the required qualities. आपको एक attempt देना चाहिए, अच्छे से दिल लगा के दीजिए, and we'll see what happens. And they also guided me throughout this process, sir. So I'm really thankful to them also. So like when you decided कि okay now I want to do civil service, so how did you approach this whole preparation? First of all, it's better to be mentally ready. So I decided this after my first year that I want to do this. So second and third year, I didn't go exactly into the preparation mode, but more or less I was mentally prepared कि हाँ अभी ऐसा ऐसा आने वाला है, and I have to start doing certain things beforehand also. Newspaper regularly पढ़ना शुरू कर दिया, और थोड़ा कंटेंट इकट्ठा करना शुरू कर दिया. You have to also filter out जो मार्केट में अवेलेबल है, या आपके सिमिलर कोई आपको टॉपर मिल जाए जो आपके बैकग्राउंड वाला हो, तो थोड़ा ज़्यादा रिलेटेबल हो सकता है. तो ये चीज़ें करना शुरू किया, एंड जुलाई 2021 आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन होल हार्टेडली. और उसके बाद से 22, 23, 24, 25 दिस माई फोर्थ अटेम्प्ट, और कंटिन्यूसली दिया है. So जब आपने डिसाइड किया, and there are lot of students जो कॉलेज में डिसाइड कर लेते हैं, right? And then from 2019 June as you mentioned to 2021, so what things, वो एक preparatory phase ही होता है. Either we talk about the mindset, content से ज़्यादा वो mindset का preparatory phase है, right? So how did you mold your mindset कि start करने से पहले क्या किया आपने actually में ना, ये 2 साल के अंदर what did you actually do? सर 2-3 चीज़ें होती हैं. पहला तो जो कंटेंट वाला एस्पेक्ट है, नॉलेज वाला, सो यू हैव टू फिगर आउट कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है. दूसरा होता है गाइडेंस वाला, कि यू रीच आउट टू 10 पीपल, 7 रिस्पॉन्ड एंड ओनली 2 आर हेल्पफुल. तो वो भी एक सीव लगाना होता है. सो वो फिगर आउट कर लिया कि अच्छा ठीक है, अगर इन दोनों को मैसेज करेंगे तो दे विल रिस्पॉन्ड बैक, और अच्छा गाइडेंस मिल जाएगा. फिर एक चीज़ ये भी होती है कि मेहनत आने वाली है, तो आपको फिजिकली भी हेल्दी रहना है, इमोशनली स्टेबल रहना है, आपकी लाइफ में ज़्यादा टर्बुलेंस नहीं आ सकता. तो ये सारी चीज़ों को फिगर आउट कर लेना, साथ ही साथ एक थोड़ा सा ब्रॉड फ्रेमवर्क भी बना लेना होता है कि फाइनेंशियली भी आप थोड़ा सा लगेगा, आप सोशली भी कट ऑफ हो जाएंगे, और इमोशनली भी आपको थोड़ा लोनलीनेस में जाना पड़ेगा. तो ये सारी चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना, अपना एक कोर ग्रुप बना लेना. फॉर एग्जांपल वी हैव अ ग्रुप ऑफ 7 पीपल जो कॉलेज से साथ में है. Some of them are preparing, some got selected, some are doing something else, but emotionally we are there for each other even now. So that is something that happened in those 2 years. So that changed a lot of things, sir. उसने बाद में बहुत हेल्प किया, right? बाद में आप ये सब नहीं कर सकते. बाद में you cannot have your tribe, you have to figure it out earlier itself, right? So in 2021 you started, Yes. correct? So what was the first challenges you faced when you begin your preparation? चैलेंज सर सबसे बड़ा ये था कि देयर वाज नो प्रॉपर गाइडेंस. गाइडेंस बहुत सारा है, बट देयर वाज नॉट द गाइडेंस दैट वाज कस्टमाइज्ड फॉर मी, व्हाट आई नीडेड बेस्ड ऑन माय स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. सो 2-3 महीने इट टुक मी टू फिगर आउट कितना कितना करना है. और उस बीच में थोड़ा एग्ज़ाम प्रेशर भी आने लगा. तो प्रीलिम्स पास आ रहा था, तो किसी ने बोला कि प्रीलिम्स पढ़ना शुरू कर दो, किसी ने बोला मेंस करना शुरू कर दो. बट समहाउ आई न्यू कि ठीक है अभी टाइम है, दिसंबर तक आई विल गिव मेंस, उसके बाद से प्री पढ़ना शुरू करेंगे. बट मटेरियल नया नया आपने पढ़ा होता है, कंसोलिडेट नहीं होता है, और उसको आप यूटिलाइज़ नहीं कर पाते. तो ये सारी चैलेंजेस आए थे, और इस वजह से फर्स्ट प्रीलिम्स आई कुडंट क्लियर ऑल्सो, बट आई मिस्ड विद अ वेरी स्मॉल मार्जिन, 2 मार्क्स से रहा था. सो आई न्यू कि जितना किया है दैट इज़ सफिशिएंट, बस इसको बेटर करने की ज़रूरत है. एंड लाइक ये बहुत ही इट्स वेरी कॉमन पहला प्रीलिम्स, क्योंकि बिकॉज इट्स अ वेरी टफ जर्नी, अ लॉट ऑफ थिंग टू स्टडी. सो जब पहला प्रीलिम्स नहीं हुआ, सो हाउ डिड यू डील विद इट? पहला प्रीलिम्स नहीं होने से दुख होता है, बाद में तो बाद में आदत आदत हो जाती है. बाद में आदत हो जाती है. पहली बार में ऐसा होता है ना, आपने लाइफ में अच्छा अच्छा किया है, 10, 12 कॉलेज सब बढ़िया, और फिर आप अचानक फेल हो गए. बट उस टाइम पे अच्छा था. माई फादर सेड कि यू डोंट स्टे इन दिल्ली नाउ आफ्टर द रिजल्ट्स वर आउट, लाइक कम बैक. लाइक नहीं नहीं नहीं, पढ़ना है, लाइक कोई बात नहीं, 2 दिन के लिए आ जाओ. आई वेंट बैक,
सर 2 दिन वी जस्ट टॉक्ड, वी विजिटेड प्लेसेस, ऐसी चीज़ें जो फुल डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। अच्छा खाना बना दिया घर पर अचानक से मम्मी ने, तो ऐसा सब हो रहा था। बट देन आई इंसिस्टेड कि नहीं, आई हैव टू गो बैक। बोले अभी क्या पढ़ोगे? फिर हमने उन्हें बताया कि ये है। एंड आफ्टर द रिजल्ट्स आई एक्चुअली प्लान माई होल ईयर अहेड। एवरी मंथ आई हैड प्लान्ड कि इसमें ये पढ़ना है, इसमें ये पढ़ना है, एक रफ एस्टिमेट। और अपने कैलेंडर में हमने नोटिफिकेशंस लगा दिए थे दैट एवरी 15 डेज नोटिफिकेशन आ जाता था। सो आई डेंट हैव टू थिंक कि अच्छा अब क्या पढ़ना है। तो जो प्लानिंग थी दैट हेल्प्ड मी इन माय नेक्स्ट अटेम्प्ट सर, इट हेल्प्ड मी इमेंसली। Or like this, I say that if you have to get out of this exam, if you are not getting selected, the earlier it is, the better it becomes the next time. डेफिनेटली सर, यू हैव टू हैव अ सेट डेडलाइन, टाइमलाइन, और Everything. कुछ भी होना चाहिए आपका, बेंचमार्क होना चाहिए। देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, गुड फ्रेंड, शी हैड डिसाइडेड दैट शी विल गिव 2 अटेम्प्ट्स होल हार्टेडली, बढ़िया से शी डिड, नहीं हुआ, मूव्ड ऑन, और नाउ शी इज डूइंग वेरी गुड इन लाइफ। तो It is also very important. यस सर। Now we will come to prelims and mains, right? So optional. You had PSIR as optional, right? यस सर। So why? And when did you decide कि चलो ठीक है PSIR? So how, like tell us the preparatory phase of optional. ये देखो बहुत ही cliched questions हैं, यस पर ये हैं जो हर साल हर बच्चों को रहते हैं कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, स्पेशली PSIR, सोशो, एंथ्रो, दीज आर द, ये हैं भी बहुत और ये डाउटफुल भी बहुत में रखते हैं। तो हाउ डिड यू डिसाइड टू गो विद PSIR? व्हाट वर योर थॉट प्रोसेस अबाउट इट? PSIR was sort of a natural choice for me because I did my graduation in political science. I did BA honors political science. तो 3 साल वही पढ़ा था. So it sort of became a natural choice. Then I talked to a mentor also. तो he suggested कि हाँ ठीक है, if you're interested in it, if you can study 6 or 8 hours of PSIR, you're not getting bored, then go for it. But अभी select करना, now situation has changed now because my ship has already sailed. ना, आई कॉन्ट चेंज मिड वे। और जो फ्लक्चुएशन वेरिएशन अभी ऑप्शनल में आ रहा है दैट स्टार्टेड फ्रॉम 22-23। तो नाउ द पीपल हु आर डिसाइडिंग टू टेक अप दीज सब्जेक्ट्स, इफ दे आर टेकिंग दीज सब्जेक्ट्स, गिविंग अप देयर कोर सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल मेडिकल साइंस, एग्रीकल्चर, वेटनरी, मैथ्स, ये टाइप का अच्छा, सो दे शुड रिकन्सिडर बिकॉज द UPSC इज रिवॉर्डिंग सच सब्जेक्ट्स नाउ। तो आपको वो कंसिडर करना चाहिए। बट एट द एंड ऑफ द डे द बेसिक फैक्ट इज योर इंटरेस्ट डिफाइंस योर ऑप्शन। देयर इज अ सीनियर IAS ऑफिसर, अ गुड फैमिली फ्रेंड, ही ऑल्सो टुक एन ऑप्शनल जिसकी वजह से उनका 2 बार रुक गया था। एंड देन ही फाइनली मेड अ चॉइस दैट आई विल चेंज दिस ऑप्शनल। उस टाइम पर 2 हुआ करते थे, तो ही चेंज द सेकेंड सब्जेक्ट एंड ही क्लियर द वेरी नेक्स्ट अटेम्प्ट। सो व्हेन आई टॉक टू हिम, ही वेरी how do I say it, very strongly said कि जो पसंद है वही उठाना, नंबर अच्छे आते हैं या ट्रेंड में चल रहा है ये मत करना, जो पढ़ सकते हो वही उठाना, बड़ा हो छोटा हो डजेंट मैटर। और ये तो फंडामेंटल है, चाहे UPSC किसी भी ऑप्शनल को रिवॉर्ड करे या ना करे, हर ऑप्शनल से बच्चे निकल रहे हैं। और अगर इंटरेस्ट है आपका तो आप निकाल सकते हो, अगर नहीं है ना तो उससे लाइक कितने भी निकल रहे हो बहुत टफ होगा, राइट? कमिंग बैक टू प्रीलिम्स नाउ, ठीक है, पहला प्रीलिम्स नहीं हुआ, देन यू मेड योर होल प्लान। सो प्रीलिम्स स्पेसिफिक दोबारा कब स्टार्ट किया फिर? बिकॉज कंटेंट तो कवर हो गया होगा, काफ़ी वैल्यूएडिशन किया होगा, राइट? सो व्हेन डिड यू गो फॉर दैट प्रीलिम स्पेसिफिक मोड? सो आई हैड अ कट ऑफ डेट ऑफ 10th Feb. 10th Feb. आई हैड डिसाइडेड दैट 10 तारीख से प्रीलिम्स में आ जाना है। सो आई टुक आउट माई जनवरी ऑल्सो, उस मेंस प्रिपरेशन, स्पेशली ऑप्शनल प्रिपरेशन के लिए टेस्ट वेस्ट लिखने थे, वो कंप्लीट किया। 10th Feb आई टुक अ ब्रेक ऑफ 2 days. आई वेंट टू विजिट माई ब्रदर, सो 2 दिन रिलैक्स किया। 12th को आई स्टार्टेड प्रीलिम्स एंड this time around I was not running after a lot of things. I think this is one thing that I would personally like to convey to everyone, that in prelims हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ पढ़ लो which is not humanly possible. लेकिन जब आपका टारगेट ऐसा होता है तो it becomes demotivating at times because you are not able to cover everything. So in my second prelims I had decided that this is my circle, I have to complete this only. जिसमें 4-5 चेकलिस्ट थी जो करना था, पूरे वो कंप्लीट हुए।
चाहे वो 2 दिन पहले होते या 1 हफ्ते पहले होते, आई हैड डिसाइडेड दैट आई विल डू दिस ओनली. एंड आई रिमेंबर a week before my prelims, second prelims, 7 days before that, at around 8:30, I had just written a test, prelims wala. I called my brother and I said कि भैया अभी जितना करना था ना, I have done and I'm not studying now. एक हफ्ते पहले. हाँ, 1 हफ्ते पहले, 23 वाले prelims से पहले. हाँ. So I called him and I said भैया जितना पढ़ना था पढ़ लिया, I'm not studying anymore. तो we just verified it कि हाँ जो तुमने बनाया था वो सब कर लिया. हाँ कर लिया. बोला फिर ठीक है. जस्ट तो पूरा एक हफ्ता कुछ नहीं पढ़ा. नहीं, फिर बस अपना पुराना टेस्ट ग्लांस किया, जो नोट्स था वो रिवाइज किया. तो आई थिंक इट वाज नीडेड फॉर माय माइंडसेट सर. फेलियर का जो सेटबैक होता है ना, उससे उभरने के लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए होता है. तो जब तक आप एक बार क्लियर नहीं कर लेते, आपको खुद पे भरोसा नहीं आता है. तो उस मोमेंट पे आई फेल्ट कि जितना आना चाहिए एक कैंडिडेट को उतना पढ़ लिया था उस साल के लिए. और उस बेसिस पर, उस कॉन्फिडेंस के बेसिस पर आई वेंट एंड गेव द प्रीलिम्स एंड अ लिटिल बिट ऑफ लक वाज इन्वॉल्व्ड सर. हेवनली ब्लेसिंग्स भी होती हैं, तो वो सारी चीज़ें भी फैक्टर इन होती हैं एंड दैट्स हाउ आई वाज एबल टू क्लियर इट. प्रीलिम्स के लिए आई वुड से दैट लाइक द स्ट्रक्चर हैज बिकम इन्वर्टेड नाउ. द प्रीलिम्स इज अ objective exam, but it is becoming very subjective. Definitely. And mains is a subjective exam and it has still some objectivity, right? Yes, sir. Yes, sir. So now how do people, abhi prelims ab hai 3 month, less than 3 months are left. So somebody who is, you know, at a place where you were in 2023, what would you say to them in these 3 months? What should they do? What should they focus upon? What should they not worry too much about? क्या ध्यान रखना है? वही है सर, आप डिफाइन कर लो इतना पढ़ना है. आई हैड अ चेकलिस्ट, NCERTs, रेफरेंस बुक्स हर सब्जेक्ट का एक, सिर्फ एक, PYQs, टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स. ये 5 चीज़ें करनी थी. अब इसमें PYQs आई वेंट फॉर 10 years, मतलब पीछे गए थे. एंड उसमें भी आई रिकमेंडेड माई फ्रेंड्स टू सॉल्व देम बैकवर्ड्स बट एनालाइज देम फॉरवर्ड्स. क्योंकि आप सीधा सॉल्व करते हो ना तो आपको आसान लगने लगता है. सो मेक इट अ लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर यू. सो सॉल्व इट बैकवर्ड्स, एनालाइज इट फॉरवर्ड. ये अच्छा बताया आपने कि आप स्टार्ट से सॉल्व करो पर फिर एनालाइज बैकवर्ड करो. नहीं, सॉल्व उल्टा करो. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर इन 26, गिविंग 26, स्टार्ट सॉल्विंग 25, देन 24, 23, 22, 21. अच्छा, And when you start analyzing, तो उल्टा करो. तो 21, 22, 23, 24, 25. इसका क्या बेनिफिट है? सर, व्हाट आई बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वाज कि जब आप उल्टा सॉल्व करते हो तो आपको डिफिकल्ट लगता है, और जब आप सीधा एनालाइज करते हो तो आपको पैटर्न दिखता है. तो जो पैटर्न रिकॉग्निशन था, दिस आल्सो अ सीनियर सजेस्टेड मी. ही गॉट सिलेक्टेड दैट ईयर. ही इज अ कॉलेज सीनियर ऑफ माइन. तो ही सजेस्टेड मी कि भाई ये करके देखना, ऐसा एनालाइज करके देखना. सो आई रियलाइज्ड कि कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे थीम्स होते हैं जिनमें से क्वेश्चन आता ही है, और वो ऐसे टॉपिक्स थे फॉर्चुनेटली जो बहुत ही ज़्यादा ऐसे रैंडम थे. फॉर एग्जांपल, वो उस टाइम पर ट्रिक्लोसैन वाला चल रहा था, टॉयलेटरीज में यूज़ होता था. PET का चल रहा था, पॉलीकार्बोनेट वाला चल रहा था. वो एक ऐसा टॉपिक था सर, वो बार बार रिपीट हो रहा था, और उसमें 4 ऑप्शन है. उन चारों पे उन्होंने 4 साल में क्वेश्चन बना दिया. तो आपको बस वापस जाके उन चारों को गूगल मारना था. सो इट हेल्प मी रिकॉग्नाइज अ पैटर्न कि ठीक है, पार्लियामेंट से किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, प्रेसिडेंट से किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, फिर ये क्वेश्चन आया था तो इस साल में ऐसा कुछ हुआ था, इलेक्शन हो गया तो उससे रिलेटेड. तो वो वाला पैटर्न भी समझ में आने लगा धीरे धीरे. तो फिर न्यूज़ में क्या पढ़ना था न्यूज़पेपर में, वो भी फिर लिंक करने लगा. सेम गोज फॉर इकोनॉमी कि रुपी वाला चल रहा है, ऑयल वाला चल रहा है, ज्योग्राफी में चल रहा है कि कोई वजह हुई होगी तो ऐसा आ गया. तो जो स्टैटिक है 15-20 क्वेश्चन, वो आप हर किसी को आते हैं, वो आपको नहीं गलत करने हैं, बट उसके ऊपर जो आपको बिल्ड करना है वो वहाँ पर हमें हेल्प हुई. बट आई स्टिल से प्रीलिम्स इज़ नॉट माई फॉर्टे. आई बीन रियली वीक एट इट सर. तो इसलिए हमको ये सब जुगाड़ करना पड़ा था. नहीं, बहुत अच्छा है ये. See, this is very nice way of knowing how actually you analyze. Everybody says do PYQ, right? But this is a very good way of actually doing it. And I hope you all learn from this. Now, current affairs. If I say कि UPSC preparation is Indian Ocean, तो Bay of Bengal तो सिर्फ current affair ही होगा, correct? There's a lot of current affairs that goes on. So what was your strategy of current affairs? So
इफ इट इज़ अ बे ऑफ बंगाल तो आइड से फोकस ऑन कोलकाता एंड विशाखापट्टनम ओनली. अभी आप म्यांमार के पोर्ट्स देखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है. तो करंट अफेयर्स को आप रिस्ट्रिक्ट कर लो, जितना आप पढ़ सकते हो और प्रीलिम से पहले रिवाइज कर सकते हो उतना ही पढ़ो. जितना आप रिवाइज करो, आई हैड दिस ड्यूरिंग माई एंटायर जर्नी. समथिंग दैट आई कैन नॉट रिवाइज बिफोर माई एग्जाम, आई विल नॉट स्टडी इट. सो इट हेल्प मी फिल्टर आउट कि अच्छा ठीक है ये छोड़ सकते हैं. दूसरी चीज़, स्टार्ट योर करंट अफेयर्स वेरी अर्ली एट से. लोग फॉर एग्जाम्पल आई हैव स्टडीड PTs रेगुलरली इन ऑल माई अटेम्प्ट्स. आई हैव रेड देम एंड टू एंड. लेकिन धीरे धीरे फिर ये समझ में आ गया था आई वोंट हैव टू रट्टोफाई देम. आई विल रीड देम इन फेब, मार्च जब तक वो पूरी आ जाती है. उसके बाद अप्रैल में आई विल रीड एंड रिवाइज दोज टॉपिक्स जो टेस्ट में हमारे आ रहे हैं. जो भी टेस्ट लगाए उनमें से भी जो गलत हो गए तो उनको रिवाइज कर लो आप वापस जाकर. और उसके अलावा लास्ट मंथ जैसे जैसे मई आ रहा है उसके बाद आप जो मेन टॉपिक्स हैं आप उनकी एक लिस्ट बना लो. 40-50 ही होते हैं और वो कहीं ना कहीं आपको घूम रहे होते हैं, तो बस उनको रिवाइज कर लो. जैसे वो वर्मिन वाला क्वेश्चन था 24 में. सो वर्मिन वाला क्वेश्चन हमने किसी टेस्ट सीरीज में देखा था. आई वेंट बैक तो आई गूगल्ड इट, तो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आ गई. उस टाइम पे 7 ही एनिमल्स और बर्ड्स थे जो वर्मिन थे. तो आई लिखा हाँ ठीक है ये इनमें से 7 है और वो क्वेश्चन आ गया. तो छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो न्यूज़ में होती हैं. उनको बस ये होता है कि आप वेब में पढ़ना शुरू कर दोगे तो आपको लास्ट में पैनिक नहीं होगा और लास्ट में फिल्टर आउट करने का टाइम बन जाएगा. So for prelims you relied on PT 365. करंट अफेयर्स के लिए आई रेड पूरा PTs. So compilation is your हाँ, way बिकॉज of reading. आई वॉज अ न्यूज़पेपर गाय जो डेली न्यूज़पेपर आई यूज टू रीड. तो मंथली नहीं पढ़ते थे एंड देन फिर आई कम्प्लीटली रिलाइड ऑन द एनुअल कंपाइलेशन. Now, as you said, you are a newspaper guy, and this is very important because everybody has their own strategy, right? But somehow we still focus कि ना newspaper पढ़ना चाहिए. So please tell us why you are a newspaper guy. What benefit you got out of reading newspaper regularly? बहुत सारे benefits. Please. I've been so my brother gifted me a subscription of the Hindu in my first year only. Okay. सो ही सेड कि अभी पढ़ना शुरू कर दो. लाइक ठीक है, रेगुलर था, कभी टाइप्स ऑफ इंडिया, कभी हिंदू. फ्रॉम माई सेकेंड ईयर व्हेन आई मेड अप माई माइंड तो आई स्विच टू इंडियन एक्सप्रेस एंड इट वाज दैट ईयर. और आज सुबह भी आई एम रीडिंग इंडियन एक्सप्रेस डेली. तो द बेनिफिट्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल आप अप टू डेट रहते हैं. दूसरी बात आप रोज़ थोड़ा थोड़ा खाते हैं तो आपको मंथ एंड में बहुत ज़्यादा नहीं खाना पड़ता. सही. तीसरी चीज़ आपकी इंग्लिश बेटर हो जाती है अगर किसी की वीक है. चौथी चीज़ आपकी लैंग्वेज अच्छी हो जाती है. फिफ्थ थिंग इज़ आपके पर्सपेक्टिव बनना शुरू हो जाते हैं. और सिक्स थिंग इज़ कि आप थोड़ा एब्सटिनेंस फॉलो करते हैं. नाउ दिस इज़ वेरी वियर्ड सुनने में, बट न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं ना UPSC वाले पर्सपेक्टिव से तो आपको बहुत कुछ छोड़ना होता है. जो वो चीज़ें छोड़नी होती हैं जो मसालेदार है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर अ क्रिकेट फैन तो भाई शुभम दुबे ने क्या छक्का मारा, बट यू वोंट एनालाइज इट कि भाई कैसे मार दिया. यू हैव टू लीव इट. करेक्ट. तो वो जो चीज़ होती है, वो क्वालिटी होती है, वो बिल्डअप होती है धीरे धीरे. एंड समहाउ यू स्टार्ट अप्लाइंग दैट इन रियल लाइफ ऑल्सो. जो यूजलेस चीज़ें उन्हें हटा दो. प्रेपरेशन में आप कर रहे हो तो जो आप नहीं पढ़ सकते उसे हटा दो. तो आई थिंक द आर्ट ऑफ लिविंग आउट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. And it keeps you, in a way, stick to newspaper because you are leaving out. अगर आप लीव आउट नहीं कर रहे, it will become very difficult. हाँ सर, बिल्कुल. देयर वर डेज व्हेन माय फ्रेंड्स यूज्ड टू शाम को फ़ोन करते थे कि भाई देखा आज क्या हुआ, कि दिन में कुछ हो गया, बड़ी न्यूज़ हो गई. लाइक कोई बात नहीं, कल सुबह न्यूज़पेपर में वर्दी होगी तो आ जाएगी. तो वो सोशल मीडिया वाला फोमो भी नहीं होता था कि ठीक है जो इंपॉर्टेंट होगा वो कल आ जाएगा. Now, coming back to prelims, how important are mock tests and what is the importance? Mock tests are very important. First of all for practice, time management और confidence building. तीनों चीज़ें important हैं. But I don't believe in the philosophy of solving बहुत सारे test. It's quality over quantity any day. So the kind of test you are solving and the time duration in which you are solving. So in my second attempt, I made a conscious decision that I have to finish the paper in 1.5 hours. Okay. Any mock test, finish it within 1.5 hours. In fact, धीरे धीरे जब last month आया था, I was able to solve it in 1 hour only. Okay. So that was a decision कि भाई करना ही है.
एक घंटे में 2 घंटे का पेपर 1 घंटे में हाँ solve 1 घंटे में आई यूज टू डू फिर 1 घंटा क्या करना है? वो तो कुछ नहीं, कुछ एनालाइज करो उसको। ओके एनालाइज के लिए आपको टाइम ज़्यादा मिल जाता है, बिकॉज अ पेपर इज नेवर 2 आवर पेपर, ओके जीएस का या सी सेट का 2 घंटे का सॉल्व करना, 2 घंटे का एनालाइज करना। तो अगर आप यहाँ थोड़ा सा बचा लोगे तो एनालिसिस में टाइम मिल जाएगा। सो स्पीड एक तो उससे बिल्ड हो जाती है सर, और दूसरी चीज़ ये भी है कि मॉक टेस्ट हेल्प्स इन मेंटेनिंग दैट एटीट्यूड वाला जो रहता है ना, पेपर वाली जो शांति, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब उसको 1 घंटे में हम सॉल्व करते थे, सो यू मस्ट रिमेंबर 23 का पेपर सर, जीएस वाला। तो बट फॉर्चुनेटली बिकॉज आई हैड प्रैक्टिस दैट, आई वाज एबल टू कंप्लीट दैट पेपर वो आल्सो। पेपर 23 का पेपर इज टॉकिंग अबाउट 23 prelims. Those people cleared who did not panicked. Those who panicked बहुत बहुत आता होगा, बट जो पैनिक कर गए थे वो उनका नहीं हुआ था वो पेपर। वो पेपर ही ऐसा था, इट वाज अ पेपर एंड दैट इज व्हाट ही इज सेइंग ना कि इफ यू डू मॉक्स योर चांसेस ऑफ गेटिंग पैनिक्ड विल रिड्यूस, कॉन्फिडेंस रहेगा, राइट? नाउ कमिंग टू एनालिसिस, एज यू सेड ना कि मॉक को एनालाइज भी करते हो आप। सो एनालिसिस के अंदर आप क्या कौन कौन सी चीज़ें एनालाइज करते हो? रॉन्ग क्वेश्चंस ओनली? पहले आई यूज टू रीड पूरा वाला कि सही और गलत दोनों, बट धीरे धीरे व्हेन आई हैव डन मल्टीपल रिविजन्स तो समझ आ गया था कि हाँ ये ठीक है आता है। तो फिर सिर्फ रॉन्ग पर आ गए थे, दी क्वेश्चंस दैट आर रॉन्ग एंड द क्वेश्चंस दैट आर न्यू, दो चीज़ें। ऐसे क्वेश्चंस जो मल्टीपल टाइम रॉन्ग हो रहे हैं उनको एक जगह लिख लीजिए, और पेपर से पहले जाने से पहले आपको वो पढ़ना होता है ओके कि ये गलत नहीं होना है स्टैटिक में। और जो नया है उसमें थोड़ा थोड़ा सा 2 लाइन का नोट्स बना लीजिए, अगर बना सकते हैं बना सकते हैं तो कुछ लगा बहुत इंटरेस्टिंग तो हाँ लिख लिया। इंटरेस्टिंग, जैसे वो वर्मिन वाला क्वेश्चन था, हम्म, सो इट वाज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। दूसरा वो गवर्नमेंट सोर्स से था, सो वो एक्चुअली था, वो आपकी विजन की टेस्ट सीरीज में वो क्वेश्चन था। ओके। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे टेस्ट सीरीज से, प्रीलिम्स में नहीं मिलेंगे, मेंस में मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि सेम क्वेश्चन उठ के यूपीएससी में आ गया, राइट? बट व्हाट लाइक ही एक्चुअली डिड एंड इट इज़ यूजफुल इज यू गो फॉर द एनालिसिस एंड वहाँ से मिल जाएगा। जैसे ये बता रहे हैं प्रीलिम्स के अंदर वर्मिन वाला क्वेश्चन आ गया, राइट? नाउ you were also you took part in Abhyas prelims also, right? What is the importance of this stimulation based examination? क्या value addition उसने आपके लिए? सर इट हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई प्रिपरेशन। पहला तो कि आपको गर्मी में बैठाता है, दूसरी बात आपको सी सेट दोपहर में सॉल्व करना है, तीसरी बात सेंटर बहुत दूर मिलता है, ठीक है? सो यू आर एक्चुअली सिमुलेटिंग एवरीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग ऑन दैट डे, because you might not have an AC room, you might get your center really far. So all these things are practiced, but these are secondary things. Primarily अभ्यास is important because पहले तो आपको वो questions की quality अच्छी है, so you prepare for them. CSET आपका prepare हो रहा है, साथ ही साथ you get a hold of where you stand in the country. So I believe almost 90% of the people who prepare for the examination, भले ही कोई टेस्ट सीरीज लगाया ना लगाए, they give अभ्यास. Yes. So you get a hold of where you stand in the country. So a senior of mine, he was my also flatmate also. So he suggested कि देख भाई, try to be within top 100 of अभ्यास. If you are within top 100, you stand a chance. पर मुश्किल हो जाता था हमारे लिए because prelims has honestly been my weak part, sir. So but I tried. फिर धीरे धीरे subsequent attempts में रैंक इम्प्रूव हुई, नंबर इम्प्रूव हुए, समझ में आने लगा कैसे पढ़ना है, और फिर ये भी समझ में आ गया था कि ठीक है नंबर्स को कितना सीरियसली लेना है। Exactly. ये भी बहुत important है, Yes, right? What is important is कि you are getting the lessons and not the numbers. Not out the of it. numbers. Correct. इसलिए नंबर से डिसहार्टन नहीं होना चाहिए। Now let's come to this attempt, Yes. prelims. Yes. Was it the same like जो अब सेकंड के बाद दिया, इस बार कुछ स्ट्रेटजी में चेंज किया था प्रीलिम्स की, एग्जैक्ट लाइक जो था वो? नहीं सेम Same. आई हैड If it's working, why do you disturb Yeah. it? Right. why mind what's not broken sir. So Now- वो टेम्पलेट आई फॉलोड दिस टाइम। यस And prelims was Yes. done. इस बार in generally UPSC has reduced the gap between prelims and mains. This is something new in last 2 years, right? So, and you have been in this journey 4 years, right? So how did you did you change your strategy कि अभी gap कम मिल रहा है? Now this is very important because बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन ऐसे करते हैं कि ये तो प्रीलिम्स तक करेंगे मेंस का, और ये प्रीलिम्स के बाद करेंगे। तो पहले क्या था और अभी लास्ट 2 इयर्स में मेंस की स्ट्रेटजी में आपका एक गैप वाला
टाइम आपने कैसे यूज़ किया और कैसे देखा इस चेंज को? सर ये जो टाइम रिडक्शन था 1 मंथ का, इसका नोटिफिकेशन 24 में आ गया था. सो व्हेन आई रेड दैट आई हैड इन माई माइंड कि ठीक है अभी 1 महीना वहाँ कम होने वाला है, सो आई हैव टू गिव 1.5 month हेयर मोर. सो 24 में आफ्टर सितंबर अभ्यास वगैरह आई गेव द मेंस वाला अभ्यास ऑल्सो, भले ही हो ना हो आई ऑलवेज गेव मेंस का अभ्यास. तो वो कंप्लीट करने के बाद आई टुक अ ब्रेक छोटा सा, और उसके बाद फिर आई वर्कड ऑन माई ऑप्शनल. और जीएस का वो वाला पार्ट जिसमें बाद में टाइम नहीं मिलता, जैसे नॉर्मली व्हाट आई प्लान फॉर द लास्ट मंथ, उसको थोड़ा सा ऐसे पीछे खिसकाना होता था. तो पुराना जो बच रहा था उसको फिर आई ट्राई टू कवर इन द प्रीवियस ईयर ओनली. सो जैसे ये साल अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको नेक्स्ट ईयर देना है, सो यू नो दैट यू ऑलरेडी हैव 1 month लेस, तो आप अभी उसको पढ़ना शुरू कर दो अक्टूबर नवंबर वाला टाइम अच्छे से यूटिलाइज करके. So now coming to mains, let's talk about GS1. We'll go paper by paper. Before we go for mains, do you have any questions related to prelims? You want to ask him? Side out clear than के prelims के. अच्छी बात है. अच्छी बात. So GS1 बहुत ज़्यादा कंटेंट है उसके अंदर, स्टैटिक भी है, तो उसको कैसे टैकल किया आपने? ठीक है सर, ब्रेक डाउन करते हैं. वी स्टार्ट विथ हिस्ट्री. एंशियंट मिडीवल पढ़ा, उसमें से क्वेश्चन आता है तो उसको प्रिपेयर कर लिया. मॉडर्न से उतना नहीं आ रहा है, नहीं यार, बट गांधी जी पढ़ लिया. ठीक है, क्योंकि अभी हमने 150 ईयर्स ऑफ महात्मा गांधी सेलिब्रेट किया था, तो वो हो गया. उसके बाद आप आए हिस्ट्री के बाद सोसाइटी, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें. सोसाइटी में आपने जो एसेंशियल टॉपिक्स हैं, विमेन, चिल्ड्रन, एल्डरली, सन ऑफ सॉयल, कम्युनलिज्म, ये सारी चीज़ें जो हैं, इन पे अपने नोट्स बना लिए. उसमें थोड़ा सा क्या होना है कि इनको कंसाइज कर लेना है. जैसे विमेन आया, विमेन पे एक क्वेश्चन आ रहा है, बट जो क्वेश्चन आ रहा है वो थोड़ा चेंज होता जा रहा है. कि अभी वो ये नहीं पूछेगा कि एम्प्लॉयमेंट वाला सीन क्या है, अभी वो चेंजिंग मैरिटल वाला आ गया, फैमिली स्ट्रक्चर आ गया. उन्होंने वो यंग विमेन का पूछा था, सुसाइड रेट्स वगैरह का पूछ लिया था. तो इवॉल्विंग जो इश्यूज़ हैं विमेन के, उनके ऊपर आप थोड़ा सा प्रिपेयर कर लो. एसेट ओनरशिप, पार्टिसिपेशन इन एम्प्लॉयमेंट, स्टेम फील्ड में कितना है, कहाँ पे कितना कर रहे हैं, रिसर्च वगैरह में क्यों नहीं आ रहे, लिटरेसी वगैरह पे, तो थोड़े इवॉल्विंग डायमेंशंस देख लो. ज्योग्राफी में यू कैन ऑलवेज रिलाई ऑन द स्टैटिक थिंग, बिकॉज क्वेश्चन वहीं से आ रहा है, घुमा फिरा के पूछ रहे हैं लेकिन वहीं से. जैसे वो ट्विस्टर पूछ लिया था, बट वो ऐसी चीज़ है जो आपने, एक मूवी आई थी सर, आई हैव सीन दैट मूवी, सो आई न्यू व्हाट ट्विस्टर वाज, बट आई वाज नॉट राइटिंग द मीन्स दैट ईयर. तो हर कोई वापस आके बोल रहा है इट वाज साइक्लोन, इट वाज साइक्लोन. अरे भाई नहीं था साइक्लोन. यू हैव टू काम डाउन, लुक बैक कि इफ इट इज़ देयर, उस क्वेश्चन में आगे हिंट भी होता है ना, ऐसा नहीं है कि ओपन एंडेड होता है. फॉर एग्जांपल एक बार उन्होंने फ्योर्ड पूछ लिया था, सो आई हैड रिटन मीन्स दैट ईयर. अब एवरीवन वाज थिंकिंग फ्योर्ड क्या है, फ्योर्ड क्या है. सो आई सॉ अ टॉपर्स वीडियो, सो ही सेड कि नॉर्मली लैंड मास, ये जो लैंड फॉर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो आइस से बनेगा, वाटर से बनेगा, या एयर से बनेगा. नाउ फ्योर्ड इज नॉट समथिंग दैट कैन बी मेड बाय विंड, सो इट हैज़ टू बी बाय वाटर और आइस. वो एक इंटेलिजेंट गैस था और वहीं बनते हैं. सो वही सोचकर हमने भी लिखा था, एंड आई गेव लेस स्पेस टू दैट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. उसके बाद वाला था ना, व्हाई डू दे मेक अ पिक्चर्स लैंडस्केप, तो उसको एक्सप्लेन कर दिया. सो यू हैव टू अप्रोच दीज क्वेश्चंस, बट दीज आर बाउंसेस. अदर देन दैट जो ज्योग्राफी का नॉर्मल आ रहा है, you have to be prepared for that. Best approach again is to go for PYQs and start reading them also backwards, I would suggest. कि rather than going 2011 का लिखूंगा फिर 24 का लिखूंगा, start with 24 वाला. और जो जैसे people who are giving this means, अगर उन्हें लग रहा है कि they have not written PYQs, तो I would recommend, personal suggestion, you might not like it, but आप सारे topics के PYQs को देख लीजिए. उसके बाद जो लास्ट के 3 साल के 4 साल के हैं, आप उनको लिख लीजिए अगर आप पूरे नहीं लिख सकते तो. और वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी इज़ मेकिंग मेंस मोर एंड मोर अप्लाइड, मोर एंड. अब आपको सीधे बहुत ही कम मिलेगा क्वेश्चन, व्हाट इज़ इंक्लूसिव ग्रोथ. हाँ, वो एक मिल गया तो खुशी की बात है, पर उसमें फिर नंबर नहीं मिलेंगे. yes, क्योंकि हर किसी को आता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज PYQ to know where the UPSC is going in terms of questions, right? So paper 1 के लिए स्टैटिक काफ़ी था. 2 और 3 सिमिलर हैं इन द सेंस कि स्टैटिक भी है और करंट भी है, दोनों में उनकी स्ट्रक्चरिंग सिमिलर है. हाँ. तो उनको कैसे अप्रोच किया 2 और?
हाँ, बट हमारे लिए वो सिमिलर नहीं थे सर. They were very different for me. I don't know why, but coming from a pol science background, my GS2 was weak. उसमें नंबर नहीं आ रहे थे. What? I don't What know is sir. your analysis? I did not. In general, although अब रिलेटिवली बात कर रहे हो या फिर 1 to 3 हाँ 4 रिलेटिवली मतलब Relatively, हाँ रिलेटिवली कम आ रहा था. तो आई एनालाइज कि भाई क्या सीन है, समझ नहीं आया. देन आई टॉक टू अ मेंटोर. तो उन्होंने बोला कि ठीक है, यू आर फोकसिंग टू मच ऑन पॉलिटी. पॉलिटी आधा है बट गवर्नेंस और आईआर भी तो है. सो ठीक है, पॉलिटी में अगर नहीं आ रहा उतना अच्छा, फोकस ऑन दिस. यहाँ पर अगर आपने आधा पेपर अच्छा कर लिया, यहाँ पर अगर 15 मार्क्स एक्स्ट्रा है तो इट विल कवर अप दिस वाला ना. सो दैट हैपेंड. बट GS3 में इट वॉज फॉर्चुनेटली ऑन द पॉजिटिव साइड. तो बिकॉज आई वॉज नॉट राइटिंग दी स्टैंडर्ड आंसर्स जो हर कोई लिख रहा है, आई वॉज गेटिंग डिसेंट मार्क्स. जब इन माई फर्स्ट मेन्स ऑल्सो आई गॉट गुड स्कोर. एंड दिस ईयर ऑल्सो आई एम होपिंग टू गेट अ गुड स्कोर, क्योंकि इस बार थोड़ा और बेटर कर लिया था. बताइए क्या किया था GS3 में आपने? इस बार सर फैक्ट्स फैक्ट्स लिखते सारे. ढेर सारा फैक्ट्स. कैसे प्रिपेयर करा ये फैक्ट्स जो आपने ढेर सारा लिखा? हाउ डिड यू प्रिपेयर दैट? This helped because last year also I prepared for my notes. Basically note making जो mains के लिए था, it was a continuous process. So every year I have a habit of studying by writing. So whenever I study something I write. Okay. That's how I remember it. Okay. So every time I used to prepare for mains, I used to make my new notes. हर बार एक नया तैयार हो जाता था. So उनमें से क्या होता था, पुराना वाला जो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हाँ ये याद हो गया है या बार बार पढ़ लिया है, उसको आप हटा दो, फिर उन पेजेस को इस वाले नोट के साथ ऐड कर दो. Next time this time also I prepared for mains last year 25 में. तो इस बार क्या किया था, स्टैटिक तैयार था, नोट्स तैयार थे, बस उसमें क्या एनरिच कर लिया उसको, बिकॉज उसकी वजह से नंबर्स कम आ रहे थे. सो आई स्टार्टेड पुटिंग एग्जाम्पल्स, वो भी थोड़े नए से, थोड़ा फैक्ट्स हर टॉपिक का. तो इंट्रोडक्शन और वो सब जो हर कोई टॉपर बोलता है उन्हीं से सीखा है कि आप इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन में से इंट्रोडक्शन को तो तैयार कर लो एटलीस्ट. यू हैव दैट रेडी, सो यू शूट राइट इट. तो वो चीज़ हुई थी, उस वजह से GS3 अच्छा रहा था. आई होप मार्क्स भी ठीक होंगे. और अभ्यास में ऑल्सो इट हेल्प सर. जो अभ्यास का मेंस हुआ था ना 25 वाला, तो GS3 में आई वॉज एबल टू डू गुड. आई वॉज एबल टू डू जस्टिस विद द पेपर. तो मार्क्स भी अच्छे आए थे, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ गया था. And you were talking about note making. So what is your view of note making? How important it is and what is your way of doing it? नोट मेकिंग इज़ एसेंशियल सर, एब्सोल्युटली एसेंशियल. और नोट मेकिंग भी ऐसा कि आपके खुद के हाथ का, इट कांट बी कॉपी पेस्टेड. मतलब इफ़ समवन हैज़ अ फोटोग्राफिक मेमोरी तो बात अलग है, बट यू कांट रिमेंबर समथिंग दैट समवन एल्स हैज़ रिटन. स्पेशली यू कांट कॉपी शॉर्ट नोट्स बिकॉज दैट इज़ यूजलेस फॉर यू. इफ समथिंग इज शॉर्ट फॉर मी, दैट हैज़ कम व्हेन आई हैड रेड इट लॉन्ग. Right. I had summarized it, I have internalized it. And that's why एक क्लू चाहिए था, एक छोटा सा क्यू चाहिए था, सो दैट आई कैन रिमेंबर इट ऑल. दैट्स व्हाई आई मेड शॉर्ट नोट्स. सो आई बिलीव इसीलिए एसेंशियल होता है, स्पेशली जब आप मेंस लिख रहे होते हैं तो इट बिकम्स अ वेरी फिजिकली टायरिंग प्रोसेस. यू राइट ऐसे का पेपर, देन यू राइट 1-2 का पेपर, उसके बाद आप शाम को घर आते हो, आप थके भी होते हो, यू हैव टू रिवाइज GS3 भी और इतना बड़ा GS4 भी. सो यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली. तो शॉर्ट नोट्स और नोट्स का ये यूटिलिटी है कि आप बार बार कम समय में उसको रिवाइज कर पाएंगे. सो व्हेन यू मेक्स 50-40 पेजेस के नोट्स छोटे, सो यू विल बी एबल टू रिवाइज देम अगेन एंड अगेन. और एक टाइम ऐसा आ जाता है, यू विल बी एबल टू रिवाइज देम विद इन 1 hour 1.5 hour ओनली ऑल्सो. तो पेपर के बीच में फिर यही होता है, वहाँ पर आपको पैनिक करके पूरा सब नहीं देखना होता. इधर यू रिवाइज द शॉर्ट नोट्स और यू रिवाइज द आंसर्स दैट यू हैव रिटन. दैट्स वेयर नोट मेकिंग हेल्प्स सर. एंड ये शॉर्ट नोट्स ना, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको मल्टीपल रिविजन्स भी चाहिए होता है. बट ये शॉर्ट नोट्स एक बार में बन जाते हैं, लाइक ये मेरे हिसाब से एक प्रोसेस है ये शॉर्ट नोट्स. हाँ, एक बार में नहीं होता. आई टोल्ड यू ना, आई यूज्ड टू मेक नोट्स बिफोर एवरी मेंस प्रिपरेशन. मतलब जिस बार नहीं हुआ था मेंस, उस वाले भी नोट्स बने थे सर. तो वो कंपाइलेशन ही होता है हमेशा सारा. कंपाइलेशन. हाँ, जैसे आपने एक बार लिखा कि नॉर्मल एक फैक्ट दिया, फिर उसका एक्सप्लेनेशन किसी टॉपिक का लिख दिया, नेक्स्ट टाइम आपने वो टॉपिक दोबारा पढ़ा, नेक्स्ट ईयर पढ़ा, तो एक तो अप्रोच नहीं हो गई, दूसरी बात आपके दिमाग में कोई नया डायमेंशन खुल गया, तीसरी बात आपने उसमें कोई नया एग्जाम्पल या वैल्यू एडिशन डाल दिया. तो अब वो ऐसी चीज़ हो गई है जो एक दिन की नहीं है, लेकिन वो पिछले 1.5 साल से हुई है. तो आपको उसकी वैल्यू समझ में आ गई है, आप उसको यूटिलाइज कर पाओगे इवन इफ द क्वेश्चन बेंड्स इन द अदर डायरेक्शन. इसलिए उसको. सो नाउ कमिंग टू एथिक्स. यस सर. सो कैसा था एथिक्स आपके लिए? मैं बिकॉज क्या होता है ना, देयर आर पीपल टू whom that paper comes very naturally,
they study not too much about it, but they score really well. And then there are toppers I have known कि उन्होंने बहुत effort डाला है और फिर ethics में बहुत improve किया. So how was your experience with ethics paper? Fortunately, sir, I was in the first category. First category. So primarily because I did not rely on any material that is available. कि जो नॉर्मल मटेरियल अवेलेबल है उसके बेसिस पे आंसर ना लिख कर. सो वेन एवर आई रोट माई एथिक्स का नोट्स या आंसर्स, आई हैड माई ओन कंटेंट इन इट. जो भी टॉपिक का नोट्स ऐसा लगता था कि कमी आ रही है, सो आई यूज टू रीड वो वाला चैप्टर और उसके बेसिस पे जब उसको 1 घंटे छोड़ दिया पढ़ने के बाद, फिर देन आई यूज टू राइट माई ओन. फिर उसमें जो एडिशन करना था वो आता था टेस्ट सीरीज के आंसर से. वहाँ से, क्योंकि वो जो टेस्ट सीरीज का है वो एप्लीकेशन बेस्ड एथिक्स है, उसी की यूटिलिटी है, तो वहाँ पे जो पॉइंट अच्छा लग रहा है उसको आप नोट्स में डालो रादर देन मेकिंग द अगेन गोइंग बैकवर्ड्स. रिवर्स इंजीनियरिंग काफी अच्छे से करी आपने. सो ऐसे यस सर, ऐसे बढ़िया हुआ है सर. हाउ टू टैकल द एसेज दैट आर कमिंग अप नाउ इन यूपीएससी? So the wordings might be different, but the approach is still the same. They are assessing certain qualities through those essays. आपको वो reflect करनी होती है वहाँ पर. Also the topics that are coming वो भी वही values पर based हैं. Truth, courage, knowledge, social justice जो एक value होती है, मतलब society की care करना for the vulnerables, women वगैरह इन सब पर. और upcoming जो technologies हैं इनके ऊपर तो broad theme से ही है. अगर आपको 8 में से 5 भी ऐसे मिल जाती हैं थीम्स, तो यू हैव सर्टेन थिंग टू प्रिपेयर बिफोर हैंड. दूसरी बात, इसमें जितना आप क्रिएटिव और ओरिजिनल रहेंगे, यूपीएससी रिवॉर्ड्स इट. ये चीज़ आई हैव रियलाइज्ड. सम पीपल हैव देयर ओन राइटिंग स्टाइल. आई हैड माई ओन राइटिंग स्टाइल. आई डोंट मेक सब हेड्स. आई राइट इन अ फ्लो, पैराग्राफ 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 पैराग्राफ, एंड यूपीएससी हैज रिवॉर्डेड मी. Okay. In my first mains also I got a decent score. This time around also I think I might have improved because I wrote good essays. So you are writing paragraphs? Yeah, total paragraph. Total paragraph. Just the heading And then paragraph. just keep it in sync. Sync. Keep it to the point. एग्जामिनर को हर पैराग्राफ एक दूसरे से जुड़ा हुआ लगे और सारी चीज़ें टॉपिक से जुड़ी हुई लगे. अगर आप डाइग्रेस कर गए तो उसका फिर थोड़ा सा ख़राब होता है. और दूसरी चीज़ ये है कि लाइक यू सेड सर, मूविंग अहेड ऑफ पेस्टल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस टाइम अराउंड बिकॉज आई हैड प्रैक्टिस फ्रेम वर्किंग बार बार नए नए एसेज की. सो आई रिमेंबर एज सून एज द एसे पेपर केम, सो आई स्टार्टेड मेकिंग जो पॉइंट्स बनाते हैं ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग. सो आई स्टार्टेड विद पेस्टल, PESTEL वगैरह वगैरह करते, एंड देन आई ओपन न्यू डायमेंशंस. 4 5 6 नए खोले हमने, विच आई हैड प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड. और उसके बाद आई टुक अ पेन और पूरा पेस्टल काट दिया. एंड आई स्टार्टेड द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ जो बॉडी का था वो उसी से शुरू किया था जहाँ पेस्टल खत्म होता था. और दोनों ऐसे में यही किया. फॉर्चुनेटली टॉपिक्स अच्छे थे, सो दैट हेल्प सर. नई अप्रोच डालना, क्रिएटिविटी डालना, while you are being consistent and doing justice with the topic, I think UPSC rewards that. Rewards in essay. Then let's move on to interview. We'll talk about optional, right? Interview के अंदर everybody goes through the same preparation phase, right? Take us to the day of the interview. Yes, sir. So I have given interview twice. This was my second interview. This time around, I had visualized a lot of things that might go right as well as things that might go wrong. So I had visualized all the things. I had visualized those scenarios wherein something untowards might happen. Before the interview, during the interview, in the building. So I was visualizing all those things. On the day of the interview, it was a nice feeling. Mine was in the second last week. So I have been studying for almost 2-3 months for the interview. And I had a lot of notes ready again. And that day in the morning, light showers happened. तो मौसम थोड़ा ठंडा हो गया था. There was a cool breeze. And I पेरेंट्स को मना कर दिया था कि आप मत आओ, क्योंकि वो परेशान हो जाते हैं यहाँ पर आना. दे हैव देयर ओन जॉब, बोथ आर वर्किंग, सो वो परेशान हो जाते हैं. सो आई सेड कोई बात नहीं, आई विल गो ऑन माय ओन. सो आई पिक्ड अप माय बैग, वेंट ऑन माय ओन. उस दिन सर वो रोड के दूसरी तरफ खड़े होकर इतना अच्छा लगा था यूपीएससी को देखकर. बिफोर द एंटरिंग द बिल्डिंग अच्छा लगा था कि उस दिन रियलाइज़ हुआ था कि चलो कुछ तो किया है जीवन में. इस बिल्डिंग को अगर आज रोमांटिसाइज कर पा रहे हैं, कुछ तो कर लिया है जीवन में. देन आई वेंट इन
जो यूजुअल प्रोसीजर होता था, आई हैड विजुअलाइज दैट माइन वुड बी द लास्ट और सेकेंड लास्ट इंटरव्यू. आई न्यू इट. सो दिस टाइम इट वॉज सेकेंड लास्ट इंटरव्यू ऑफ द डे. द ओनली फियर वॉज दैट बोर्ड कुछ ऐसा ना पूछ ले या कुछ इस डायरेक्शन में ना चले जाए जहाँ आता ना हो. बट उसके लिए भी आई हैड प्रिपेयर्ड कि ठीक है, कुछ ऐसा मेजर लगाना है, स्टॉप गैप मैकेनिज्म लगाना है कि यहाँ पे सर्किट ब्रेकर होगा. बट नॉर्मल चला. कुजीन के ऊपर और चीता के ऊपर बहुत पूछा था उन्होंने. चीता बहुत पूछा आपसे? चीता तो बहुत, कुजीन भी बहुत पूछा था सर, बिकॉज इट इज़ मेंशन इन माय डेव. तो इंडियन कुजीन्स के बारे में काफ़ी पूछा था. चेयरपर्सन सर तो खुद ही इन्वॉल्व हो गए थे कि अच्छा यहाँ गए हो? यस सर. ये खाया है? यस सर. अरे वहाँ पर वो शॉप है बड़ी फेमस सी, वहाँ गए हो? यस सर. यस सर, वहाँ भी गए हैं. अच्छा तो खोपरा पेटिस खाया है? यस सर, खाया है. तो इस टाइप से गया था सर. बट ऑल दिस हैपेंड बिकॉज अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन वेंट इनटू Right. and Even you know, to handle that situation where the board is actually enjoying your interview. yes, I was about to say the same thing. Yes sir. It is very important, because then you have a tendency to say something which you should not say. So now you had a very long journey, Vishwajit, right? And motivation. How did, because ये बहुत important है. When the failure stuck once, okay, when it stuck twice. So how did you kept that motivation level up that has led to this, outcome? It is not कि ये आपका आखिरी attempt था जिसकी वजह से आपका 67 आया होगा. हर attempt का अपना contribution है, right? How did you kept yourself motivated? Sir, if I speak honestly, people might not like this, क्योंकि हर किसी को वही सुनना पसंद है. नहीं, आप वो बोलो जो आपके I say discipline over motivation any day. Okay. There is no substitute for that. Motivation आता है जाता है. Discipline होना चाहिए. If you have decided to give an exam, if you have made a choice, then it is your right and duty to prove that decision right. Decisions are not right, they are proven right. So I believe यही करना चाहिए. आप disciplined रहिए. There were days when even I felt like not doing it. या उठने का मन नहीं करता था. I was talking to a friend recently and I told her कि there was a day in my interview, in my mains preparation, when I was so physically weak that I woke up one day and I just said to myself, I don't want to go. I don't want to write the test today. My eyes are hurting. My legs are paining. My hands are paining. I just don't want to get up today. And I wept like for 10-15 minutes in the bed only. Like फिर चलो कोई बात नहीं, चलो पेपर देने जाते हैं. And I went and wrote the paper. And that is very important. Sitting आपको देनी पड़ेगी. उसका कोई alternative नहीं है. And there are a lot of distractions also. Social media has become a distraction. Other than social media, there are a lot of distraction. The time duration is long, so your ability to get distracted is also more. So how did you manage distractions? Sir, शुरू से ही I tried to stay away. From social media? हाँ, I've never been really active on social media. फेसबुक वाली जनरेशन आके चली गई है. आई वाज नेवर ऑन देयर. व्हाट्सएप का मिनिमल यूज़ है. ऑल्सो आई डिडंट शेयर माई कॉन्टैक्ट विद मैनी पीपल, तो ज़्यादा कुछ वो था भी नहीं. इंस्टाग्राम पे कभी रहे नहीं. बट अदर देन दैट देयर इज दिस पर्सनल थिंग दैट आई वांट टू शेयर टू माई फेलो एस्पिरेंट्स, बिकॉज अ लॉट ऑफ अस फेस दिस बट नॉट all of us discussed this. Sir, it was 2022, second half of the year, after July. So now at that point I have failed my first prelims and I have faced a serious failure in my life. I also met an accident. Okay. So I had some serious injury. Bruises थे but दिखने में बहुत ख़राब था. Also emotionally turbulent phase आ गया एकदम से. So it was a very downward spiral. And 2-3 months I was very disturbed. I was really disturbed. And in those months I found spirituality and I found my friends. They really helped me. In that phase also I realized that जब आप बहुत टाइम अकेले रहते हो ना, तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू गिव योर सेल्फ टाइम एंड रिजुविनेट योर सेल्फ. दैट्स वाई बार बार आई हैव मेंशन्ड इन दिस टॉक ऑल्सो दैट आई यूज टू टेक ब्रेक्स, इंटेंशनल ब्रेक्स. Even before this interview, my interview was on 18th of March, but 18th of Feb, sorry. We are in March, 18th of Feb. But on 1st, 2nd and 3rd Feb, I didn't study anything because I was exhausted. So again, I talked to a mentor. He said, कोई बात नहीं, आप जाओ मूवी देख कर आओ, आराम करो.
यू हैव स्टडीड अ लॉट एंड देन जब वापस आ जाओ करना. सो टेकिंग केयर ऑफ योर इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और जो शॉर्ट टर्म ऐसा आपको बेनिफिट दे रहा है ना, जो डी स्ट्रेस कर रहा है, उससे नहीं होता है. यू हैव टू टेक द हार्ड डिसीजन, यू हैव टू मेडिटेट. इवन पिछले कुछ दिनों से आई बीन रियली बिजी सर, ट्रैवलिंग एंड लोगों से मिलना बहुत हेक्टिक हो रहा था. सो आई वॉज लूजिंग माई सेल्फ. सो दिस मॉर्निंग आई वोक अप रियली अर्ली. आई ट्रैवल्ड एक दूसरी जगह से. आई हैड टू कम बैक टू माई रूम. आई केम बैक, took a bath, and even today I meditated. Okay. Just to center myself, to get back in touch with myself. So it's really important to meditate. It's really important to stay positive, to have good people around you. एक positive environment रखना. That is actually beneficial rather than going for the distractions. And I was coming to this only, like lot of especially young aspirants ना, जो आके like they jump into this preparation, the first thing they do is they isolate. Seriousness का मतलब somehow has become to isolate yourself, not from a distraction, from everybody, cut off, right? So how important was the social circle in your life, and how important it is for this UPSC preparation? So not just the social circle, the right kind of social circle, I'd say. So my social circle वो UPSC में आके नहीं बना था. This was a group of 7 people and we are together since our college days. And कुछ UPSC वाले भी हैं उसमें, कुछ नॉन UPSC वाले भी हैं. तो ऐसी बकवास बातें चलती रहती थी हमेशा. But more importantly, they were always there for me. So during my mains preparation, ऐसा होता था कि I used to study all day long. और जितना सोचा था वो कंप्लीट करते करते 12 साढ़े 12 हो जाता था. Now I have spent an entire day totally intaking input, knowledge, test वगैरह वगैरह वगैरह. And there were days when I didn't utter a single word in the entire day. Now at 12:30 at night, I want to talk to someone. And fortunately I had a good friend. I used to call her कि फ़ोन उठा ले 12:30 पे, and she used to pick up. There were days when I didn't speak anything and she understood it. Like ठीक है, कोई नहीं, I'll talk, तुम सुनो. फिर वो थोड़ी बकवास बातें की, थोड़ी हंसी मजाक किया. एंड देन शील से कि कोई बात नहीं, कल ग्रुप कॉल पे आ जाना एंड विल डिस्कस इट. तो नॉट गोइंग टू द रिलेशनशिप एंगल, ऐसी बात नहीं है. बट फ्रेंडशिप और जो मीनिंगफुल लोग होते हैं आपकी लाइफ में, दे आर, वो किसी भी जेंडर के हो सकते हैं. इट डजंट हैव टू बी ऑलवेज रोमांटिक. सो दैट्स वाई आई वुड से कि टू हैव द राइट काइंड ऑफ सर्कल, जो आपको सपोर्ट करें, जो आपको समझें, एंड दोज हु आर एक्चुअली देयर व्हेन यू नीड देम. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपके पास हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो भगवान तो है ही, वो तो सबके साथ है. Right. तो उन पे ज़रूर भरोसा रखिए. And you need your spirits high for this exam. Yes, sir. As I said, it's a journey. You cannot. The people who have done it alone, but it gets easier when you have people to share it. Yes, sir. Right. Now, if like you have a very interesting, you have a very interesting journey. You have a good deep perspective about the journey, right? And you have good experience. So, two things, Vishwajit, that you would like to share with all the aspirants and those who will watch it later, to have that in their mind throughout the journey. Two things. सर थोड़ा इंटरव्यू प्रैक्टिस से आया है, बट कैन आई थिंक अबाउट इट फॉर Yeah, sure. So, sir, two things that I'll say to anyone who's trying to appear in civil services or thinking about this exam. पहला तो कि this is tough. Tough because you have to do the hard work alone and by yourself. कोई आपको स्पून फीड नहीं कर सकता. You have to do the hard work, hard toil yourself. आपको उतने घंटे बैठना होगा, आपको भी उतने टेस्ट लिखने होंगे जितने किसी टॉपर ने लिखे थे. आई यूज टू सी द टॉपर्स के सर टेलीग्राम चैनल, वो इतना मोटा मोटा रजिस्टर डाल देते थे कि ये सारे टेस्ट लिख दिए. आई यूज टू थिंक ऐसा कितना लिख दिया भाई. एंड आई डेंट रियलाइज इट नाउ, बट यस्टरडे माई फ्रेंड केम टू विजिट माई रूम, और उसने जब हमें दिखाया ना मेरा कबर्ड खोल के, भाई तूने भी इतने ही लिखे हैं. एंड देन आई रियलाइज कि हाँ यार, मतलब इतना करते हुए रियलाइज नहीं होता है. सर देयर वर टाइम्स, ही वाज माय फ्लैटमेट वंस लास्ट ईयर तक, तो देयर वर टाइम्स व्हेन ही यूज्ड टू कम इन माय रूम और पूरा रूम में पेजेस होता था. आई यूज्ड टू सिट ऑन द फ्लोर ऑल्सो, मतलब चेयर पे नहीं, हम खुद वहीं बैठे होते थे, हर तरफ पेजेस थे. और वो आता था, बोलता था भैया मैं ये उठा के ना इधर रख रहा हूँ बिकॉज आई हैव टू सिट हियर. लाइक ओके भाई. सो यू हैव टू डू द हार्ड वर्क बाय योरसेल्फ. नो वन इज गोना डू इट फॉर यू.
ऑल्सो देयर आर नो शॉर्टकट्स, ठीक है. यू हैव टू डू द हार्ड वर्क बाय योर सेल्फ एवरी डे. जितना आप रोज़ करेंगे उतना आपको लास्ट में पेपर से पहले कम करना पड़ेगा. और दूसरी बात जो ये चीज़ है, मतलब इट्स नॉट टू डीमोटिवेट एनीवन, बट लाइफ इज़ बियॉन्ड दिस एग्ज़ाम, इससे बड़ी है. तो जैसा सर ने बोला कि सीरियसनेस को आइसोलेशन मान लेते हैं, तो वो मत कीजिए. आपकी जो भी हॉबीज़ हैं आप उन्हें परस्यू कीजिए. आपका जो फ्रेंड सर्कल है रेस्ट्रिक्टेड ही रखिए, लेकिन उनसे इंटरेक्ट कीजिए, उनसे मिलते रहिए. सर महीने में 1 बार 2 बार तो मिल ही लीजिए. अपनी फैमिली को भी टाइम दीजिए, आप अपने लिए भी टाइम निकालिए. जो लोग बहुत लोग निगलेक्ट करते हुए देखे हमने. पीपल डोंट टेक ब्रेक्स, they study for 9 months straight and then suddenly there's a crash down. Don't do that. Everyone has their way of replenishing themselves. For me it's travel and food. So whenever I get a chance I travel. I'll travel ऐसा बैग लेके सर, भले 500 रुपये हो जेब में, I'll travel. कोई बात नहीं, क्या थोड़ा राजमा चावल कड़ी चावल खा लेंगे, क्या दिक्कत है, नहीं रुकना 5 स्टार में. But you have to travel because change of scenario is very important. This year also I suggested a junior of mine, वो भी एग्ज़ाम दे रहा है. तो दिसंबर में आई टोल्ड हिम कि भाई देखो अभी प्रीलिम्स आ रहा है, यू टेक अ ब्रेक इन दिसंबर ओनली बिकॉज नाउ यू हैव टू सिट फॉर 5 months. तो ही टुक माई एडवाइस. 2 दिन उसने 3 दिन किया. बट जब तक आप वो होता है ना, आप खुद नहीं होते पानी में, तब तक पता नहीं चलता है. सो सिंस आई फेस्ड इट, इमोशनल बर्नआउट इज़ वेरी रियल. स्ट्रेस होना बहुत रियल है. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई हैड स्टेज 2 एंग्जाइटी. माई BP वॉज 135. डॉक्टर ने देखा, बोलते क्या दौड़ कर आ रहे हो क्या? नहीं नहीं सर, अभी यहीं बैठा हूँ मैं. तो उसने भी वही बोला, अरे चिल मारो, क्या दिक्कत है, एग्ज़ाम है, टेक इट एज एन एग्ज़ाम. इसके हर फेज़ को देखो, और जितना हो सके ना, जितना पॉसिबल हो सके, एंड आई एम सेइंग दिस टू एवरीवन जो बाद में भी देखेंगे, इट एनी फेज ऑफ प्रिपरेशन, स्टे ग्राउंडेड, स्टे प्रेजेंट. वी हैव अ वेरी फास्ट टेंडेंसी टू थिंक अबाउट द फ्यूचर. आज अगर 8 घंटे पढ़ लिया है तो ऐसा लगता है कि यार प्रीलिम्स निकल गया तो मेंस कैसे पढ़ूंगा. आपने सिर्फ आज 8 घंटे पढ़ा है, आप लास्ट तक जाइए. सो there's this philosophy of mine, good times or bad, I always remind myself, one day at a time. Don't rush. Take one day at a time. चाहे अच्छा जा रहा हो, चाहे बुरा जा रहा हो, every day is a new fresh start. Any questions you would like to ask him? पूछो आप पूछो. The issue with most UPSC aspirants is not effort, it is foundation. A strong foundation means 3 things. Learn in the right sequence so subjects reinforce each other. Apply early through answer writing and testing. Correct continuously through proper diagnosis and feedback. This is what the GS Foundation course at Vision IAS is built around. Connected GS coverage, not isolated subjects. Early writing and testing, not last-minute panic. Diagnostic test analysis with clear corrective steps. Current affairs organized into usable themes for prelims and mains. Regular mentorship to prevent drift. Effort is common, structure is rare. If you are serious about UPSC, start by getting the foundation right. Upcoming classroom batches: Karol Bagh 9 March 11 AM, 13 March 8 AM and 24th March 5 PM. And GTB Nagar batches for English 17 March 8 AM, 25 March 6 PM. And for Hindi 16 March 11 AM. For more details, visit our website or call us on the given numbers. Good evening, sir, and heartiest congratulations. I'm glad that you are finally out of the cycle now. So my question is very main specific. I come from political science background, and since I have always had this hobby or habit of writing answers for like 7-8 pages for just 15 marks. And we also have that content, to write like examples, explaining them. So I find it difficult to concise my answers, especially when it comes to polity or the subjects with current affairs linkages. Okay. Like the statics, I find it, I can concise it, but the other Explanatory part. You have humanities background in your graduation, right? Yeah. वहाँ पर हम लोगों को बहुत लिखवाते हैं वो लोग कॉलेज में. ठीक है, तो दिस इज़ बोरोड विजडम. यू कैन गो टू द ओरिजिनल पॉइंट सोर्स, दैट इज़ उत्कर्ष द्विवेदी सर. ठीक है, उन्होंने PSIR पे बहुत अच्छा काम किया है, और उन्होंने, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम ऑल्सो, उन्होंने सब कुछ पब्लिक डोमेन में रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है. आप उनका ब्लॉग पढ़िए और उनका जो स्ट्रेटजी थी उसको फॉलो कीजिए. बाकी देखो, जो आंसर कंसाइज करने की बात है ना, तो आंसर बड़ा लिखने का नंबर नहीं है. नंबर इस बात का है कि आंसर में जो पूछा गया है वो लिखा या नहीं. अब वो कैसे पता चलेगा आपने लिखा या नहीं? पहला तो स्ट्रक्चर है,
आप कहीं से कुछ भी नहीं लिख रहे, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन होना चाहिए, डन। नेक्स्ट थिंग, कीवर्ड्स। अगर आपसे जो जियोपॉलिटिक्स पर कोई सवाल आया है ना, तो उसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि इंडिया क्या कर रहा है, ईयू क्या कर रहा है, यूएस क्या कर रहा है, वेस्ट एशिया में क्या चल रहा है, अंडर सब ओशियानिया में क्या चल रहा है, लैटिन अमेरिका में क्या चल रहा है, फिर उनके जियोपॉलिटिकल लिंकेजेस क्या हैं। अभी आप कैसे दिखाओगे? जो फॉरेन पॉलिसी में टर्म्स चल रहे हैं, यू हैव टू रिफ्लेक्ट देम इन योर आंसर, है ना। तो स्पेशली ये जो आपने सवाल पूछा कंसाइज करने का, ये इशू आता है पेपर 2 में, इफ़ आई एम गेसिंग इट राइट। वहाँ पर क्या होता है कि कंटेंट बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो गया है और क्वेश्चंस बहुत नए आ रहे हैं। तो उसके लिए क्या करो, आप थोड़ा सा ORF पढ़ लो, है ना, एंड ट्राई टू मेक शॉर्ट नोट्स आउट ऑफ इट। मतलब दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू हैव टू राइट डाउन, बस एक समझने की बात है। आपके पास कोई एक चीज़ है, ठीक है, एक आपने पूरा 10 मिनट का रीड किया, आर्टिकल पढ़ा मतलब, और आपने उसको 5 पॉइंट में समराइज़ कर लिया। नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई पूछेगा तो यू वोंट हैव टू थिंक अबाउट द 10 मिनट रीड, यू जस्ट समराइज द 4-5 पॉइंट्स। आप शॉर्ट नोट्स बना लोगे, दे विल हेल्प यू। एंड आई वुड रिकमेंड कि आप जिस साल मेंस दे रहे हो ना, उससे 1 साल पहले बना लेना। डोंट डू इट बिटवीन द प्रीलिम्स और मेंस वाला फेज़, वो बहुत क्रंच टाइम है। तो वहाँ पर आप बेटर कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना, दैट विल हेल्प यू। Sir, one more question. Like literally just last 2 months remaining for the prelims, and so what will you suggest? What should we do in these 2 months, and how should we plan everything? आप जहाँ खड़े हो उसको असेस करो। माई टेम्पलेट वॉज आई टोल्ड यू 5 थिंग्स, है ना, एंड आई रिपीट इट फॉर यू। NCERTs, हर सब्जेक्ट का एक रेफरेंस बुक। PYQs एज फार बैक एज यू कैन गो। जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, गो बैक टिल 1993 इफ़ पॉसिबल। नहीं जा सकते, गो बैक टिल 2013। PYQs कंप्लीट करने के बाद टेस्ट सीरीज़, PYQs का रिवीजन साथ साथ में, और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कम्स लास्ट बिकॉज यू हैव टू रिमेंबर इट इन द एग्जाम। सेकेंडली, उसकी यूटिलिटी फिर आप उसी हिसाब से एक्सट्रैक्ट करते हो, ठीक। ये 5 चीज़ों में आप असेस कर लो। दिस इज़ माई असेसमेंट, आपका डिफरेंट हो सकता है, लोग कम पढ़ के भी निकालते हैं। आप इसमें जहाँ पर हो उसके स्टेप के आगे से पढ़ना शुरू कर दो। टाइम कम है तो उतना ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दो और चीज़ों को छोड़ना शुरू कर दो। आप 1000 पेज पढ़ के मई में एक एग्ज़ाम नहीं लिख सकते। आप उतना पढ़ो जितना आप रिवाइज कर सको। ट्राई सॉल्विंग मोर टेस्ट, वहाँ पे जो क्वेश्चन गलत हो उनके छोटे छोटे नोट्स बना लो ताकि पेपर में वो क्वेश्चन गलत ना हो। दैट इज़ समथिंग यू कैन ट्राई। एंड आई विल अगेन से द PYQ वाला अप्रोच यू शुड डू, है ना, गो बैक, क्योंकि PYQs एज इट इज़ रिपीट हो रहे हैं, लास्ट ईयर भी हुआ था। Okay. Any more questions? Listen, sir, I want to ask about the strategy of CSAT paper. यस मैम, CSAT इज़ बिकमिंग रियली अनप्रिडिक्टेबल। ओके, तो CSAT में देखो तीन चीज़ें हैं, कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, मैथ्स। आप कोई भी आपका एक स्ट्रॉन्ग सूट तो होगा ही, है ना, तो उस पर आप वर्क कर लो, उसमें एक्यूरेसी बढ़ा लो। हमारा ऐसे था कि कॉम्प्रिहेंशन सही था, डिसेंट था, मैथ्स उतना नहीं आ रहा था क्योंकि टाइम हो गया पढ़े हुए, तो वो स्पीड नहीं आ पा रही थी। तो क्या करो, कॉम्प्रिहेंशन में एक्यूरेसी बढ़ा लो, रीजनिंग का आइडेंटिफिकेशन अच्छा से कर लो, वो क्वेश्चन गलत ना हो, और फिर पेपर में ना बैठ के स्ट्रेटजी मत बदलना। आई हैव सीन पीपल ऐसा करते भी हैं और देखा भी है उन्हें बोलते हुए कि पेपर में बैठ के वो डिसाइड करते हैं कि पहले मैथ्स अटैम्प्ट करना है या पहले इंग्लिश अटैम्प्ट करना है। ये मत करना, आप घर से सोच कर जाओ और टाइम भी डिस्ट्रीब्यूट करो। 1 घंटा इंग्लिश, 1 घंटा मैथ्स। आई यूज़ टू डू लाइक दिस, मैं आपको अपना बताता हूँ। तो आई यूज़ टू डू मैथ्स पहले, क्योंकि उसमें क्या होता है कि देयर वाज अ थिंग दैट आई यूज़ टू डू बिफोर माय CSAT पेपर कि GS खत्म होते ही आई यूज़ टू कम आउट ऑफ द सेंटर, हैव अ ग्लूकोज और कोई अच्छा सा एनर्जी ड्रिंक, नॉर्मल वाला, नॉट द फैंसी वंस, और कहीं पे भी शांत जगह देख के, घास देख के थोड़ी देर सो जाओ, 10 मिनट के लिए नैप ले लो, एक टाइमर लगा के, कोई साथ में है पेरेंट्स वगैरह। आई यूज़ टू गो अलोन फॉर माई पेपर्स, तो आई यूज़ टू पुट अ टाइमर, 10-15 मिनट सो जाओ। आप उठोगे तब तक हो चुका होगा आधा घंटा, ठीक है, क्योंकि आपने खाना वगैरह खाया, वो सब किया। उठने के बाद आपने जो सॉल्व किया हुआ है उसको रिवाइज करो। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज 23 का पेपर बहुत ही ऐसे नेक्स्ट लेवल था, 25 का भी थोड़ा डिफिकल्ट आया था। तो उसके लिए आप क्या करो ना, पहले तो स्ट्रेटजी बना ली कि पहले मुझे ये डिफिकल्ट करना है, फिर मुझे ये करना है, और टाइम डिसाइडेड है, 1 घंटे में जितने होंगे उतने करने हैं, ताकि इसमें कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। दूसरी चीज़ ये कर लो कि इनको सॉल्व कर लो, 23 और 25 को बार बार, क्योंकि ये बिल्कुल हाईएस्ट थ्रेशोल्ड है, तो या तो इसके लेवल पे आएगा या इससे नीचे आएगा, तो फिर आप परेशान नहीं होगे।
और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 23 बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है तो आप 20 से लेके 25 का कर लो, 23 छोड़ दो, तो भी आपके प्रिपरेशन हो जाएगा। अगर उसमें भी लग रहा है कि कमी आ रही है, नंबर नहीं आ रहे हैं, तो फिर कुछ बेसिक छोटी जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती है मैथ्स को सॉल्व करने की, इंग्लिश को समझने की, उनको फिर आप अभी से प्रैक्टिस करो। डोंट लीव इट टिल फॉर मे, आई वुड रिकमेंड। और अगर आप बाद में दे रहे हो तो आप जो सितंबर के बाद वाला पीरियड होता है ना, आप चाहो तो 1 महीना आप वहाँ पर भी सीसेट पढ़ सकते हो। गुड इवनिंग सर। हाउ वी शुड टाइम मैनेज सर? अपना शेड्यूल सर बता दीजिए सर। सॉरी, टाइम शेड्यूल सर, डे शेड्यूल। अच्छा, टाइम Schedule टेबल। कैसा? हाँ, वो पेज चिपकाया था वो 2-4 साल पहले धूल खा रहा है वो। कंसिस्टेंसी सर कैसे मेंटेन कर सकते हैं? कंसिस्टेंसी क्या होती है? सॉरी, आई एम बीइंग फ्रैंक। आप सर्वर मत बोलो, हम आपसे छोटे होंगे, आपके एज के होंगे, यू कैन बी वेरी फ्रैंक विथ मी। कंसिस्टेंसी क्या होती है? कंसिस्टेंसी ये होती है कि आज मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो मैं फ़ोन चला रहा हूँ, कंसिस्टेंसी टूट गई। समझ रहा हूँ? लेकिन जब भूख लगती है तो खाना खाते हो ना, है तो कंसिस्टेंसी। सो जोक्स असाइड, बात ये है, मोटिवेशन ठीक है, अच्छी बात है, बट वो ओवर हाइप्ड है। सर, यू हैव टू बी डिसिप्लिन। समझ रहे हैं? जैसे आज का हमारा जो एंगेजमेंट्स था, जितना भी सुबह से लेके हम सुबह 7 बजे से हम घर से निकले हुए हैं, ठीक है। आई हैड डन अ लॉट ऑफ थिंग्स अभी तक। यहाँ पर आने में भी आई गॉट लेट बिकॉज आई हैड एन एंगेजमेंट समवेयर एल्स। अब मैं उस टाइम पे फ़ोन करके सर को बोल दूँ कि सर आज मेरा मन नहीं कर रहा है, आप एक काम करो, बच्चों को बोलो कि बाद में देखेंगे, अच्छा लगेगा क्या? सो आपसे जो एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस सर्विस में, वो कंसिस्टेंसी की ही है। तो जिस दिन आपका मन नहीं कर रहा है उस दिन भी आपको बैठना है। आप 100% नहीं पढ़ सकते तो 30% पढ़िए, 40% पढ़िए। और माइकल फेल्प्स, आपने नाम सुना है उनका? ओलंपियन स्विमर थे उन्होंने, ही हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ रिकॉर्ड गोल्ड मेडल्स। तो ही वन सेड दैट द ग्रेट्स डू थिंग्स इवन व्हेन दे डोंट वांट टू। समझ रहे हैं? तो आई हैड अ फोटो ऑफ माइकल फेल्प्स इन माई रूम, बहुत छोटी सी है, ऐसे कॉर्नर में है, ओनली आई सी इट, आई नो वेयर इट इज़। यू नो, देयर वॉज अ टाइम इन हिज लाइफ व्हेन फॉर 5 years, 5 साल तक, एवरी सिंगल डे ही वेंट इन टू द स्विमिंग पूल एंड स्वैम। बर्थडेज, एनिवर्सरीज, बीमार होना, न्यू ईयर्स, वो उस दिन भी स्विम कर रहा था। एंड आई यूज़ टू कंपेयर माई सेल्फ टू हिम सर, कि वो व्यक्ति 5 साल तक रोज़ स्विम कर सकता है, मैं बैठ के पढ़ नहीं सकता क्या? तो ठीक है, बात अलग अलग हैं, लेकिन जिस दिन आप 100% नहीं दे सकते, उस दिन भी आप कोशिश कीजिए कि आप 30% दें, 40% दें। कुछ नहीं तो न्यूज़पेपर पढ़ें, जो पुराना पढ़ा है उसको रिवाइज़ कर लें, लेकिन ब्रेक तब लो जब दिमाग थके। ये नहीं कि आज मन भटक गया। आपसे जो एक्सपेक्टेड ड्यूटीज़ हैं, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको मिल रही हैं यहाँ पर सर्विस में आने के बाद, उसमें आपको 24/7 रहना होगा सर अवेलेबल। You can't go on your whims and fancies. So it's very important to develop discipline now. Thank you so much, Vishwajit, for such a very, insightful and, to be very honest, honest Towers talk, right? Sir, I believe in giving the honest, whatever I have learned, giving it honestly to the other person. I've tried that, sir. And thank you for having me. It was really great. It was, very insightful. And it will help a lot of people, right?